Hi students, how are you all? You know me very well. My name is Shruti Goyal. I'm your English teacher. So let's start with our today's topic. And yes, we have done 8 subparts of tenses now. Now today we will do perfect, future perfect tense. Yes, we were doing perfect tense series now. Future perfect tense means completed action in future, which depends on our plans, estimations. Like sometimes we say, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि वो कल इस टाइम तक आ चुका होगा, मैं खाना खा चुकी होंगी, ठीक है ना। तो हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, तो इन टाइप की सेंटेंसेस हमारे इस कैटेगरी में आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। वो खाना खा चुकी होगी, कल सुबह तक मैं ये काम कर चुकी होंगी, हम कहते हैं ना। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं, फेयर नोटबुक्स में, और उनको फ्रेम रूल्स के अकॉर्डिंग फिर उनको कन्वर्ट करना है। एंड हाँ, आपने देखा ही है ऐसे सेंटेंसेस हमारे मेन वर्ब में क्या यूज हुआ है, चुका होगा, चुकी होगी, दिया होगा, लिया होगा, एटसेट्रा। Yeah, I know, although these types of sentences are not mostly useful in our spoken language, but still it's a part of grammar, so we should do it. We should understand it. So now let's begin with the rules. Affirmative sentences. Rules for affirmative sentences. Now, subject. I hope it is clear to you. I think marker is not working. Subject plus will have plus verb's third form plus object. Yes, this is the rule for affirmative sentences. That is, subject first we use subject always, then we'll have is the helping verb here. In past perfect we have seen that there we use had as a helping verb, and in present perfect हमने क्या use किया था helping verb के मतलब point पे के place पे क्या लिया था हमने, has या have लिया था. But yes, in the future perfect tense, in affirmative sentences or in interrogative or in negative sentences, we always use will have. हाँ, whether subject be a plural, singular person, or first person, second person, third person, it doesn't matter. We'll always use will have as a helping verb here. Now let's take few examples. Just a second, just a moment. I'll fill the marker with ink. I think it's not working. Yeah, now it's moving. First example. She will have eaten food. वो खाना खा चुकी होगी. She subject, and मैंने कहा है चाहे वो सिंगुलर पर्सन हो, चाहे वो प्लूरल पर्सन हो, लाइक सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, प्लूरल या फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, कोई भी सब्जेक्ट हो, बट आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, विल हैव. देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, खाने की इंग्लिश ईट, यू नो वेल, एंड थर्ड फॉर्म इज ईटन. देन फूड ऑब्जेक्ट. सेकेंड एग्जांपल. He will have slept by 11 p.m. Yes, वो 11 बजे तक सो चुका होगा. वो कुछ भी ले सकते हैं इंग्लिश में, he और she, बट मैंने यहाँ पे he लिया है, आप she भी ले सकते हैं. Then will have as a helping verb. Then verb's third form. Sleep is the first form of verb. Then slept is the third form. Then by 11 p.m. वो रात के 11 बजे तक सो चुका होगा. तक 11 बजे तक, तो इसलिए हमने उसके लिए बाय यूज किया है. नेक्स्ट एग्जांपल वी टेक. You will have studied by 12 p.m. or a.m. any time you can write it over there. You will have studied by 12 p.m.
तुम 12 बजे तक पढ़ चुके होंगे, तो यू सब्जेक्ट तुम के लिए, देन विल हैव, देन स्टडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय 12 PM, तुम रात के 12 बजे तक पढ़ चुके होंगे। सो फटाफट से आप नोट डाउन करें इसको, फिर हम आगे चलते हैं। Yes, now we'll come to rules. Rules for negative sentences. See, first we use subject, then we'll use will as a helping verb. In affirmative sentences हमने देखा कि हमने helping verb will have लिया था, but negative sentences आपको पता ही है क्या होते हैं। Negative sentences में हम हमेशा एक word use करते हैं, क्या use करते हैं? Not। तो हम यहाँ पे इसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना होगा कि हमें not कहाँ प्लेस करना है। विल हैव के बीच में नॉट यूज होगा, तो आप इसके लिए बहुत केयरफुल रहेंगे, आप अपनी नोटबुक्स में कोई भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। सी, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स। आप ये दोबारा नोट डाउन करेंगे, यू हैव टू नोट डाउन इट करेक्टली एंड अगेन यू विल नोट इट डाउन। मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, सेम सेंटेंस लिया था मैंने। She will not have eaten food. वो खाना नहीं खा चुकी होगी, ठीक है, उसने खाना नहीं खाया होगा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, वो खाना नहीं खा चुकी होगी, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, उसने खाना नहीं खाया होगा। तो नॉट यहाँ पे हमने लिया है, हम इसके लिए बहुत केयरफुल रहेंगे। बाकी सब कुछ सेम था, रूल्स में हमने देखा ही अभी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस विल फ्रेम अ नेक्स्ट सेंटेंस। आई विल नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर 1 AM। मैं सुबह के 1 बजे तक नहीं सोई होंगी। सुबह के मतलब रात को, जो आपको पता ही है 12 स्टार्टिंग हो जाता है, 12 AM तो मॉर्निंग हो जाती है, होती तो रात है बट यस मिडनाइट। सो 1 AM मैंने बोला है। आई विल नॉट हैव स्लेप्ट बिफोर 1 AM, आई एज अ सब्जेक्ट, देन विल नॉट हैव एज अ helping verb according to the negative sentences rules, then slept verbs third form and then before 1 AM। 1 बजे से पहले मैं नहीं सोई होंगी, तो पहले के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिफोर, इसलिए मैंने वहां पे बिफोर लिया है। थर्ड पार्ट हमने देखा है, थर्ड एग्जांपल इसका नेगेटिव सेंटेंसेस का। यू विल नॉट हैव यू विल नॉट हैव स्टडीड। हमने थर्ड सेंटेंस का एग्जांपल लिया है, यू विल नॉट हैव स्टडीड, दैट इज सब्जेक्ट हमने यू लिया है, देन विल नॉट हैव अकॉर्डिंग टू द रूल हैव स्टडीड। तुम पढ़े नहीं होंगे, तो इसलिए हमने इसके लिए यहाँ पे क्या यूज किया है? विल नॉट हैव। बस बी केयरफुल विद द नॉट हियर, ओके। नाउ जस्ट नोट इट डाउन फास्ट एंड देन विल मूव फर्दर। Students, now come to rules for interrogative sentences. You know interrogative sentences we have already done in 8 subparts previously, and interrogative sentences means questions. When we ask something, then this type of sentences comes under interrogative sentences. That is, just let's see its rules for future perfect tense. First we take a word from WH family, then will as a helping verb, then subject, then not. If we required it only, then we take not. That's why I have put it in the bracket. Then have, then verb's third form, and then object, that is, and then question mark. Now and I apply the rule in the examples. See, first example, will he have played? क्या वो खेल चुका होगा? Now you tell me the answer will be in yes or no form, or simply we can answer in any other way. Yes, it can be, answer can be in yes or no form na, so we will not use a word from WH family, we will directly come to helping verb, that is will, then he as a subject, then have, because हमने not इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें नीड नहीं है उसकी, then have, then played, that is verb's third form. Next sentence, why will she not have come to the party by 11 PM? वो 11 बजे तक पार्टी में क्यों नहीं आई होगी? तो उसके लिए हमने why का यूज किया है WH फैमिली से। क्यों?
क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा है कि वो क्यों नहीं आई होगी 12 बजे तक, 11 बजे से पहले पार्टी में, तो क्यों के लिए हम वाई यूज करते हैं। और इसका आंसर हम कैसे फॉर्म में दे सकते हैं, यस और नो फॉर्म में तो दे नहीं सकते, तो इसलिए हम इसमें डब्ल्यूएच फैमिली का यूज करेंगे। देन विल एज अ हेल्पिंग वर्ब, देन शी एज अ सब्जेक्ट, देन नॉट, then have, and come to the party by 11 p.m. Just be careful with the position of helping verbs, that is will, not and have. हमें कहाँ पे replace करना है, आप बहुत careful इनकी position carefully याद रखेंगे। Then last example of the topic, will they not have slept? क्या वो सोए नहीं होंगे? तो हम यहाँ पे आंसर yes और no फॉर्म में दे सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं, बट फिर भी करवाना ये बहुत जरूरी था क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। देन विल, देन सब्जेक्ट दे, देन नॉट क्योंकि यहाँ पे नीड है, देन हैव, देन स्लेप्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू. If it is not clear to you, then you can take your problems on WhatsApp number also, and you can take your problems in the comment section below. So I'll be back with my next video, and till then, take care. Bye bye.